إنك لمن المرسلين اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو، على صراط مستقيم سیدھے رستے پر، تنزيل العزيز الرحيم یہ خدائے غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع کیا گیا تھا متنبع کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، آپ یہ 15 ہماری طرف سے یہ دے دیں، بول دینا نام کے ساتھ بول دیں، جس کے علاوہ بھی نام نہیں جس کا بولے گا معذرت خواہ ٹھیک وہ ہے، ادھر آ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں گے۔ وہ نام سن لینا۔ مفتی عبدالشکور باروی صاحب، علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب، علامہ شوکت علی سیالوی صاحب، علامہ عبدالرحمان قادری صاحب، پروفیسر محمد انوار حنفی، قاری سعید احمد صاحب، تبریز احمد صاحب، ڈاکٹر محمد ارشد، محمد اجمل صاحب، محمد قاسم، محمد قاری محمد طفیل نقشبندی، مفتی ولایت اقبال، غلام مرتضیٰ، قاری محمد اسلم صاحب، قاری گل فراز احمد صاحب، محمد یہ پیپر میں دے دیں ادھر نالے کو دے صاحب، جس کا نام نہیں نا بولا آپ ادھر کھڑے ہو اچھا، یہ اس میں اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے لیے وقفہ کریں گے۔ ہاں جی بالکل، نماز کے لیے ابھی طے کر لے وقفہ۔ وقت میں کھڑا دو بندے اتنے وسکار پاؤ جڑے ٹائم میں کھڑا لینے، ایک بندہ ادھروں لوگو ایک بندہ ادھروں لوگو۔ آپ اس طرح کریں کہ 2 بجے کر لیں، 2 بجے ظہر ہو جائے گی، اس میں 30 منٹ رکھ دیے جائے ظہر میں، اثر کے لیے کوئی اسی طریقے سے ٹائم کر لیں۔ 15 منٹ کا 2-3 گھنٹے بعد 11:30 مناظرہ شروع ہونا ہے، جی کو حالے جڑی گل بات ہونی جدو 11:30 تھی رکھ لو میکسیمم، 11:30 12:30 1:30 تے 2:30 3 گھنٹے بعد تو لیٹ ہو جائے گا نا، پھر 2 بجے کر لو، پھر 2.5 گھنٹے بعد۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 2 بجے نماز کے لیے 2 بجے نماز کا آدھ گھنٹہ، 8 گھنٹہ 5 گھنٹے ہوگا، وہ لکھا ہوا ہے اتفاق کے ساتھ ہوا ہے انشاءاللہ، تو اس ابھی اتفاق کے ساتھ ہمارا ان سے گفتگو ہوا ہے، آپ بھی اتفاق کر لیں۔ 2 بجے ہو جائے گا، 2 بات پھر طے کر لیں کتنا اور چلنا ہے۔ نہیں بار بار طے کرتے ہیں ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ جہاں سے تقریر شیخ صاحب کی شروع ہوگی، دیکھیں خالصتاً جو مناظرہ ہے وہ 3 گھنٹے، وہ چلو ہمارے حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 گھنٹے، لیکن یہ مناظرے کے علاوہ جو تنقیح ہوگی، دعوی جواب دعوے کی جس طرح وہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ مناظرے کے علاوہ ہوگا۔ جب تک اس کی پوری توضیح نہ ہو جائے، وضاحت نہ ہو جائے، پارٹی صاحب ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، 5 کی بجائے 10 گھنٹے رکھ لو، 20 رکھ لو،
20 दिन रख लो, 20 दिन रख लो। रशीद साहब ने कहा है कि 3 घंटे काफिया, हमारे साथियों ने भी कहा, साहब ने हमारे साथियों ने जो कहा है ना, कई साल आप 30 कहेंगे, मैं 40 कह दूंगा। 3 घंटों में सब कुछ हो जाता है। वो जो है ना, उसके अलावा नहीं, मेरी बात सुनिए, वो बात है कि आपने अपने दावे के मुताबिक चलना है, ठीक है, दावे के मुताबिक दलाल देने हैं, वो तो आपकी में ही होगा। 3 घंटे जो है, ठीक है, तो तनकीह का भी एक वक्त मुकर्रर कर लो, उसके बाद मुनाजरा शुरू कर दे। अगला 3 घंटे तय होता है, 5 घंटे। तनकीह वहाँ आप नहीं लिख रहे थे जात के एतबार से, बशर ये लफ्ज आप नहीं लिख रहे थे, हमने क्योंकि शुरू से जाकर कर दिया था ना, जाकर आपने 3.5 घंटे के बाद लिखा है। अब ये तो वो रिकॉर्ड पर है मौजूद गुलाटी साहब, मतलब ये है कि आप उस पर हुक्म नहीं लगा रहे थे और 3 घंटे उस हुक्म लगाने में लग गए थे। ठीक है जी, हमारे बुलारे साहब कहते हैं ठीक है। देखिए, तनकीह दावा और अकीदा उसकी जब तक तौज़ी न उस पर 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, मरते दम तक हो, उसकी तौज़ी होगी। और तनकीह भी मेरे जो अल्फाज हैं उसकी तौज़ी आप मुझसे पूछ सकते हैं, उस पर 20 दिन लगे, पूरी जिंदगी उस पर गुजरे, जो भी हो। और आपसे मैं जो पूछे, जिस तरह मैंने आपको वहां कहा था, ये तनकीह वजाहत मुकम्मल होगी। आप वहां भी पहले नहीं लिख रहे थे, उसके बाद 3.5 घंटे के बाद आपने लिखा है, वो लिखा है हमारे पास है, जात के एतबार से 3 घंटे जो थे ना, 3 घंटे आपने हुक्म लगाने में ज़ाय किए, इसलिए टाइम बढ़ता चला गया। अभी जो 5 एक दरखास्त इसलिए कि जो चीज शुरू होती है ना, उसका एंड भी होता है। वो जो शुरू में होती है उसका एंड साथ है। जो काजी साहब, अब ये होगा कि तनकीह समेत 5 घंटे हो रहे हैं, ये तनकीह को शुमार नहीं किया जाएगा। देखिए, तनकीह पे जितना वक्त लगे, एक मुनाजरा अगर आप 3 घंटे रखते हैं तो मुझे मंजूर है, अगर आप 2 घंटे रखते हैं खालिसन जो मुनाजरा वो भी मुझे मंजूर है, अगर आप 5 घंटे रखते हैं वो भी मुझे मंजूर है। लेकिन तनकीह दावा उसकी वजाहत और तौज़ीह जब तक मुकम्मल न हुई, वो मेरी तरफ से और आपकी तरफ से उसको नहीं छोड़ा, दोनों तरफ से। बाकी खालिसन जो मुनाजरा है वो 3 घंटे रखते हैं, 5 घंटे रखते हैं, 2.5 रखते हैं, 2 रखते हैं, ठीक है। खालिसतन जो मुनाजरे का वक्त लिखा हुआ है वो 5 घंटे। 5 घंटे हमने फरीकैन अन्य आपस में ये तय कर लिया कि खालिसतन जो मुनाजरा का वक्त है वो 3 घंटे होगा, और जो तनकीद वो 5 घंटे भी अगर रखेंगे, तनकीद के लिए अलग वक्त चाहिए वहां पे। 5 घंटे मुनाजरा, घंटा, आधा घंटा, 5 घंटे तनकीद, 3 घंटे मुनाजरा रख दे तनकीद पर, इसके अलावा वक्त रखें। तनकीह के लिए देखिए, तनकीह के लिए वक्त ये है कि अगर जब तक उसकी तौज़ीह न हो जाए मुकम्मल, ये बातें आप भाई साहब कहते हैं ना, वो भाई को आप बताएं तो वो दरवाजा करें, शुरू करें। काजी अब्दुल रशीद अरशद साहब, शेख मोहम्मद सफदर उस्मानी साहब, मोहम्मद उमर सदीक, नसीर अहमद काशिफ, मोहम्मद नासिर जी, मौलाना अहमद या सदीकी साहब जी, मौलाना मिर्जा मोहम्मद यूसुफ जी, अब्दुल गफूर साहब, सज्जाद सल्फी साहब, उधर मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, मौलाना मिर्जा मोहम्मद रफीक साहब, ताहिर उस्मान खान साहब, हाजी गुलाम मुस्तफा, आसिफ साहब जी। आपका नाम क्या है? आप नाम कोई बारिश और ना आई, पुराने मुनाजरा ये मुनाजरे को दाद वगैरह देनी, ये बाजरा बराए मेहरबानी ना उधर से हो ना इधर से हो, ये दाद वगैरह मुनाजरा के लिए ना माशाल्लाह कहने में कोई ये बात इससे बढ़ती बढ़ती शायद सब शिद्दत इख्तियार है।
माशाल्लाह कहने में कोई हर्ज नहीं है। वो आप दिल में क्या है जी? दिल में दिल में क्या है? हाँ दिल में ठीक। हाँ बिल्कुल शेख साहब इस तरह होता है फिर शिद्दत होती है। अल्लाह ताला जिक्र कभी भी सुन लेता है। आवाज साफ आवाज बड़ी आवेगी माशाल्लाह मौलवी माइक के अंदर लाग दे दो माइक के अंदर आप भी एक और स्टैंड देना जी इस नाम की एक अपना शाह वगैरह बंद करना साथी बाहर सेन में भी बंदे गिन लेने चाहिए। हाँ जी सही बात है वो भी बराबर होना चाहिए। भाईजान ये बाहर वाले जो बंदे बैठे हैं उनको कोई माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये नारा ये शोर वगैरह कोई ऐसी बात नहीं। भाई आदमी 15 आदमी की बात हुई है, 15 के साथ कोई नहीं होगा। जिस तरह आप भाई साहब कौन आपके आदमी कंपाउंड में जो बात तय हुई है कि जो जाए मुनाजरा है वहाँ पर जो है वो गिनती के आदमी होंगे। बाहर अगर कोई साथी बैठता है नहीं ठीक है, जितने आदमी हमारे बाहर हो इनके उतने होने चाहिए, जायद नहीं होने ठीक है साहब ने ठीक किस चीज के ऊपर बात करते हैं? रात बैठे हुए हैं हर बंदा बोलता है तो एक हमारी तरफ से ये मुंतजिम जहाँ हमारे से बात कर वो हमारे मदरे में ना जो शर्त ये लिखी हुई है इसमें उलझने की तो बात ही नहीं है। जितने हमारे आदमी उतने आप रखें तो आप पार्टी साहब यही कह रहे हैं कि उतने आदमी रहने से बकाया निकाल दें। जी बात अब क्या अंदर हो या बात बंदे बराबर होने चाहिए या नहीं? कंपाउंड में एक कमरे में अफराद उतरे बात सुने ना, बात बिल्कुल सीधी सी है कि बंदे बराबर होने चाहिए या नहीं? जी जी। तो फिर इसमें कौन सी झगड़े वाली बात? दावा लिखने के बाद तफसील पर जितना भी टाइम लगेगा ठीक है। बाकायदा मुनाजरा जो होगा ना पहली तकरीर से शुरू होगा वो 3 घंटे होगा। ये मैंने भी बात कर दी है कि मुनाजरा शुरू होने से पहले तनकीद के दावा और अपने अकीदे की वजाहत तौज़ीह उस पर जितना टाइम भी लगे, क्योंकि उसको मुजमल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुनाजरा जो होगा उसी दावे अकीदे पर होगा। सही है सर। जिस तरह वहाँ हमारा खानेवाल में भी 3.5 घंटे लग गए थे दावे पे। ख्याल है जो अकीदा आपने लिख कर दिया है और मैंने भी लिख कर दिया उसमें सारी वजाहत मौजूद है। उसमें वजाहत नहीं है, आपके अकीदे में अभी बहुत वजाहत मतलूब है मुझे, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है और मैंने जो अकीदा लिख कर दिया है आप मुझसे जितनी वजाहत चाहते हैं आपको इजाजत है। आपका अकीदा इजमाली है मेरे नजदीक, उसमें मैं आपसे एक एक लफ्ज के मुतालिक पूछूंगा और आपको भी इजाजत है। जिस तरह मैंने खानेवाल में भी कहा कि एक एक लफ्ज के मुतालिक मुझसे आप पूछे मैं उसको हल करूंगा। गुवाहाटी साहब ट्रेंड और तरीका है ना, इनसे 2 मुनाजरे करने होते हैं ना जी। पहला मुनाजरा दावे पर होता है और फिर दूसरा वो जो पहला होता है ना उसी में हम लिख कर ले लेते हैं कि जात के एतबार से बचा, उसमें हम लिख कर ले लेते हैं। सफीन भी होने चाहिए। काजी साहब मेरा ख्याल है कि आप जो चल रहा है इस तरह के ये जो वीडियो है ना यही फैसला लोग देखें। अच्छा मेरी बात सुनो, मुंसिफीन की जहाँ तक बात है जो आवाम है वो फैसला है। तो मैं ये ऑन द रिकॉर्ड बात आ रही है कि खानेवाल के साथ जबकि 8 घंटे जब देखे ना 3.5 घंटे आप इसलिए हमने 8 डिस्क जारी की। खानेवाल के दोस्तों ने 7 डिस्क, लाहौर में 3 डिस्क, कहीं 6 डिस्क। तो इस तरीके से जज मेरा ख्याल अगर हो जाए ना जी जो बाद में अपना फैसला दे हमारे पास असल ओरिजिनल मौजूद है। हमारे पास 8 घंटे या मतलब 8.5 घंटे हमारे पास असल मौजूद है। आपके पास पूरी जायद करना मुख्तलिफ और इस तरह आपके मुनाजरों में भी हुआ है और नूरी साहब ने भी इस तरह मुनाजरे किए हैं, उसमें जायद कर अपनी तकरीर बाद में भी किए हैं। दोनों तरफ ये एक ऐसा मौजू है
کہ جس پر ہم بات کرتے جائیں گے اور اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا؟ جہاں تک منصفین کی بات ہے نا، میری بات سنیے سیالوی صاحب، میری بات سنیے، منصفین کی جہاں تک بات ہے، اب مناظرہ ہو گیا، اب وہ منصف فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے، ان کا آپس میں مناظرہ شروع ہو جائے گا، یا ان کو 15 منٹ 20 منٹ دیے جا سکتے ہیں، 15 دیے جائے، 15 دن دیے جائے، جس طرح ہمارا مناظرہ ہو گیا ان کا بھی مناظرہ ہوگا، ایک نتیجے پر پہنچ جائے گا۔ اب ہمارا منصف کہے گا نہیں میرا مناظر جو ہے وہ غالب رہا ہے، آپ والا بھی کہے گا اپنے الفاظ میں، ان کا آپس میں ان کا مسئلہ ہے، یہ منصفین کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے فیصلہ کرنا ہے۔ بہرحال منصف ضرور مقرر ہوں گے اس مناظرے میں۔ منصف دیکھیں، منصف بالکل ہونے چاہیے، میں بھی کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ منصف ایسا ہو کہ عالم ہو، ہماری طرف سے بھی عالم ہو، جو مناظرے کو سمجھتا ہو، عبارتوں کو سمجھتا ہو، عبارتوں کو سمجھتا ہو، صرف نحو کو سمجھتا ہو، منطق کو سمجھتا ہو، اصول کو سمجھتا ہو، قرآن حدیث کو سمجھتا ہو، اصل تو قرآن حدیث ہے، اور پورے علم پر اس کو عبور ہو، وہ ہماری طرف سے ہوگا، اور جو آپ کی طرف سے ہو وہ بھی عالم ہے، ٹھیک ہے۔ عوام جو ہے، آپ 2 آدمیوں کے نام دیں، ہم اپنے 2 آدمیوں کا نام دیں۔ آپ اپنے 2 آدمیوں کا نام دیں، پہلے میں نے کہا یا آپ نے کہا؟ نہیں، پہلی کی بات نہیں ہے، پہلے آپ نے یہ کہا ہے کہ منصف، تو منصف یہ تو بات ختم ہو، پہلے آپ دیں، تو میں نے آپ کو پہلے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے 2 آدمیوں کا نام دیں۔ منصف آپ پہلے مجھے کیا صاحب میری بات سنیں، اب آپ منصف جو ہے ان میں سے مقرر کریں گے، ان میں سے یہ جو اندر بیٹھے ہیں 15 بندے انشاءاللہ تعالیٰ، جب یہ جو اندر 15 بیٹھے ہیں ان میں سے آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی اپنے 2 آدمی منصف مقرر کریں گے نا۔ بات یہ حضرت، یہاں تک تعلق ہے نا منصفین کا، اس وقت پہلے سکھ بھی ہوتے تھے، ہندو بھی ہوتے تھے، عیسائی بھی ہوتے تھے، پڑھے لکھے لوگ وہ ہماری باتوں کو سمجھتے تھے، اور اب حالات ایسے ہیں کہ یا تو ہم میں سے کوئی بریلوی عقیدے کا ہوگا یا تو میں اور مولانا انوار ہمارا بعد میں واقعہ ناراض ہو جائے، میں کہوں گا گوہاٹی صاحب غالب رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ حضرت مفتی صاحب غالب رہے ہیں۔ منصف تو نیوٹرل آدمی ہونا چاہیے نا، جب آپ ہم میں کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہے تو لوگ دیکھیں گے فیصلہ خود کر لیں گے۔ اچھا، میری طرف سے منصف قاضی صاحب ہے، ایک عمر صدیق صاحب، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ میری طرف سے منصف قاضی صاحب اور عمر صدیق صاحب، یہ میری طرف سے منصف ہے، آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ جو منصف مقرر ہوں گے باقاعدہ ان سے حلف لیا جائے گا 4 آدمیوں سے کہ وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے جو دلائل وہ سمجھے۔ میری طرف سے منصف قاضی صاحب اور عمر صدیق صاحب، سن لینا، بات تو سنا کرے نا، بات تو سننی چاہیے۔ سن لیا میں نے، ٹھیک ہے، تو ان آدمیوں سے حلف لیا جائے گا، آپ کے آدمیوں سے بھی اور ہمارے آدمیوں سے بھی، کہ وہ اللہ کا خوف پیش نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ صادر کرے۔ انہیں بعد میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ دیا جائے گا، اگر وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پہنچتے تو پھر اس کے بعد ثبوت رہے گی، پھر اور بات ختم کر دی جائے گی۔ وہاں پہ اگر یہ بات جو ہے شیخ صاحب کی کہ منصفین اگر کسی اتفاقی فیصلہ پر نہیں ان کا اکٹھ ہوتا تو وہاں پہ بات ختم کر دی جائے۔ ہماری طرف سے ایک منصف علامہ مفتی ولایت اقبال صاحب ہیں اور دوسرے منصف ہماری طرف سے لکھ کر دیں علامہ مفتی عبد الشکور البانی صاحب۔ دیکھیں سیالوی صاحب، پہلے آپ فیصلہ کر رہا پیو نہ کی کرنا۔ سیالوی صاحب میری عرض سنیں، جو منصفین فیصلہ کریں گے انہوں کا فیصلہ جڑا انہاں کرنا ہے وہ خود قدر کو نہ کہڑے لفظاں نال کرنا ہے، برابر دی گل میں بات جی برابر دی اگر انہیں بات کی تو لفظ کی لکھنے نے، اگر لکھنا ہے نا کچھ نہ کوئی فیصلہ اگر انہوں کہ فلاں جو مناظر ہے دلائل ترجیح رکھتے ہیں یا ان کے اتنے سوالات وارد ہوئے جن کا مد مقابل مناظر نے جواب نہیں دیا ہے، اس طریقے سے وہ لکھ دیں گے اور اس کے بعد اپنا فیصلہ نہیں کر پاتے تو پھر تو آپ کا فیصلہ جو ہے نا وہ پہلے کیا وہ ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ نہیں، اس طریقے سے ہوگا نا کہ پھر جیسے ان دوستوں نے فرمایا تھا بھی
आधा घंटा हम देते हैं और वो आपस की बहस के बाद भी एक जानिब पर नहीं पहुंच सकते जी जी, तो उसको मुतलक छोड़ दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा सियालवी साहब मेरी यार सुने, अब जो हम तनकीह के दावा करेंगे जी जी, उसकी वजाहत करेंगे जी, उस वजाहत की लिखाई होगी जी, जिस तरह खानेवाल में हुआ था जी जी, वो लिखाई हमारे पास है। वो जो मुंसिफीन फैसला करेंगे उस लिखाई और उनके सामने अब मुनाजरा हो जाएगा, तो उसी मुनाजरे और उस लिखाई के मुताबिक वो फैसला करेंगे। लिखाई से क्या हुआ? लिखाई मतलब है कि आप ये नई लिखाई फिर कैसे होगी? ये जब दावे लिखे जा चुके हैं, यही तो मैं कहता हूँ कि इसमें बड़ी वजाहत अभी बाकी है। वजाहत आपको जो आपने वजाहत लेनी है वो वजाहत आपको दी जाएगी। हाँ, लेकिन वजाहत किसी किस्म की कोई तब्दीली अब वजाहत जब आप देने के लिए तैयार हैं तो लिख कर देने के लिए क्यों नहीं तैयार? जी, जब मैं आपसे वजाहत पूछूंगा, अब आप तो इस पे तैयार हो गए हैं कि ठीक है वजाहत के लिए हम तैयार हैं, तैयार हो गए हैं ना? आपने जुबान के अल्फाज से हर वक्त तैयार रहते हैं। नहीं ठीक है, क्योंकि ये नया अकीदा नहीं, नया अकीदा निकाल दिए हैं और यहाँ गलती लिखनी पड़ती है, जिनको गलती लिखनी यहाँ बात तय हो चुकी है कि 3 घंटे मुनाज़रे के अलावा आ रहा है शुरू से 3 घंटे वजाहतें होती है, जो वजाहतों का एक अलग बात है। मेरी बात सुनो, अब मेरी बात, क्योंकि आज मैंने शुरू में आपको कहा था कि हमारे अकाबरीन के क्या का मुझे बड़ा मुनाज़िर के दस्तखत, लेकिन उसके बावजूद अब मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे? फरमाया अच्छा, इस तरह है कि मुनाजरे के अलावा पहले पूरी तौज़ी की जाएगी, ये फैसला हो गया है, सारों ने इस पे हाँ कर ली है कि तौज़ी की जाएगी, ख्वाह उस पर जितना भी वक्त गुजरे। हाँ, अच्छा, मुनाजरा जो होगा वो 3 घंटे होगा। अब तौज़ी जो की जाएगी वो कलामी जुबानी की जाएगी, ठीक है? नहीं, जुबानी कलामी की जाएगी और उस जुबानी कलामी के साथ साथ मेरी बात सुनना, जुबानी कलामी के साथ, हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ कि वही जुबानी कलामी के साथ वो बुनियाद बनाए। यही मैं कह रहा हूँ, शुरू से ही कह रहा हूँ, बस वो समय देर में आती है ना जी, जैसे अगर मुझे तो कहते बस ठीक है इस तरह होगा, समझ तो असल में आपको नहीं आती। अच्छा, मेरी बात को खुद तस्लीम कर लेते हैं, पढ़ के सुना तस्लीम खुद कर लेते हैं, तो मेरी बात मैं दोनों को पढ़ के सुना दूं ना, आपको उस पर इत्तेफाक होता है, पहले वैसे उसके फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अहले हदीस की तरफ से 2 मुंसिफ हैं, काजी अब्दुल रशीद साहब और मोहम्मद उमर सिद्दीक। दस्तखत मिन जानिब अहले हदीस मोहम्मद सादक कोहाटी 29/1/2006। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आले सुन्नत व जमात की तरफ से 2 मुंसफीन हैं। पहले मुंसिफ हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल शकूर अल-बारवी मद्दज़िल्लाह अली और दूसरे मुंसिफ हजरत अल्लामा मुफ्ती वलायत इकबाल साहब मद्दज़िल्लाह। और इसमें दस्तखत आले सुन्नत व जमात के मुनाजिर की तरफ से अल्लामा गुलाम मुस्तफा नूरी साहब तारीख दर्ज। अच्छा, इसकी तारीख एक और लिखकर हमें दे दें और इसकी तारीख हम लिखकर आपको दे दें। ठीक है। और इसमें यह भी इजाफा कर लो तहरीर में कि मुंसिफीन का फैसले का वक्त आधा घंटा है। अगर आधा घंटा में फैसला कर लें तो बेहतर, अगर नहीं फैसला करेंगे तो फैसला रिव्यू होगा। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि लिखाई होगी, कुरान का हुक्म फक्तुबू, जब कोई मामला तय करो तो उसको लिख लिया करो, उसमें कोई शक शुबा नहीं रहता, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह के खाने वाले की तारीख हमारे पास लिखी हुई है, नूरी साहब के दस्तखत भी मौजूद है, सियालवी साहब के दस्तखत भी मौजूद है। जी हाँ, आप तो उसकी भी तारीफ मौजूद है, सब कुछ है। हाँ बिल्कुल। आप वो जब एक जानिब की बात करते हैं ना तो उस वक्त फिर ये लफ्ज़ सादिक कुछ अच्छा सादिक नहीं आता। एक थोड़ी सी मसला है कि जो खाने वाले कहना यही वजह जो है ना आगे आगे हमें बोलने की सादिक ने सदाकत खाने वाल में भी दिखाई थी, सादिक ने सदाकत आज भी दिखाई वो तो और सच्चाई दिखाएगा इंशाअल्लाह। वहाँ भी वीडियो पे गवाह है, सादिक आज भी सदाकत दिखाएगा। हाँ जी, ये मुफ्ती
साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये जो रेफरेंस है ना, मुझे मालूम हो रहा है कि बात खाने वाले की क्या गुजरा वाले की शुरू हो जाए लंबा हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ इस बात को छोड़ दें। सामने ला मैं उसकी वजाहत करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आज से मैंने 5 साल पहले मुनाजरा किया हो उस पर भी गुफ्तगू करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये तो आप मुश्किल में पड़ जाए, पहले आप देवबंद नहीं होकर भी मुनाजरे करते रहे हैं। फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी रुजू किया है जुराबों पे मसा अन्नहु रजा इला कौलिहिमा व अलैहि फतवा कर लिया है। साथ ये कह रहे हैं हमने समझ कर वो सारी उम्र फतवा देते रहे आप जुराबों पे मसा करना जायज नहीं है। हिदायत है अन्नहु रजा इला कौलिहिमा व अलैहि फतवा। आप जो बंदी से हो गए वहाबी, इंशाल्लाह वहाबी से हम आपको अल्लाह पाक हर एक पर आपने बात की अल्लाह फरमाते हैं हजरत मुफ्ती साहब ये जो अबहास है, ये जो बस है, ये मौजू से खारिज है। मौजू की तरफ साथ नहीं, ये हमारे मुंतजिम है, जी हमारे आपकी तरफ से वो मुंतजिम है, वो कारी साहब ये मुंतजिम है आपकी तरफ। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी से पहले वाली उम्मत को ना 1200 अब्दुल वहाब नहीं शेख साहब, अब्दुल वहाब तो बरेलवी मशरब था। भाई मैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कह रहा हूँ ना, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी मैंने कहा। उनसे पहले 1200 साल कमोबेश तक की उम्मत को पता नहीं चला था कि हमने वहाब की तरफ निस्बत लौहे महफूज पर लिखा था इन्नका अंतल वहाब। ये अल्लाह ने अपनी तख्ती पे लिखा हुआ था। आप अब्दुल वहाब की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 1200 साल पहले अल्लाह ने आयत नाजिल की इन्नका अंतल वहाब। वहाब या निस्बत की है, साहब को या निस्बत की है। मौजूद है इन्नका अंतल वहाब। लौहे महफूज पर लिखा हुआ था इन्नका अंतल वहाब। आप 1200 साल की बात करते हैं। लौहे महफूज पर लिखा हुआ था इन्नका अंतल असल में जो मौजू है उसकी तरफ आए वो जरा लिख रहे हैं मोहब्बत की बातें हो रही हैं। असल में चाहे बात को जोरदार सुनो। वहाबी के अलावा अगर कोई देखे, हम अहले सुन्नत व जमात हैं, ठीक है जी। मसाइल मुजतहद फीहा के अंदर इमाम आजम ने रहमत की तहकीकात को हम बाकी उलमाए किराम की तहकीकात पर फौकियत देते, इसलिए हदफी है, ठीक है जी। हिंदुस्तान के अंदर जब एक खास मसाइल पैदा हो गए कलामी अकायद के, तो उसमें हम मौलाना अहमद रजा अलैह रहमत की तहकीकात को फौकियत देते हैं उनमें, इसलिए बरेलवी हैं। आप वहाबी के अलावा अल्लाह पाक मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम उनकी तरफ कोई भी सिफत मुबारक लेकर अपने आप को निस्बत करे तो आप पर कोई हमने पाबंदी आलुल हदीस हमने लिखा है। आलुल हदीस आप लिखते कोई सब पढ़ेगा। लेकिन ये कहते कि हम वहाबी और अल्लाह वाले और बाकी उम्मत, तो मैं कहूँगा फिर 1200 साल पहले वाली उम्मत फिर अल्लाह वाली नहीं थी। सहाबा भी अल्लाह वाले, ताबीन भी अल्लाह वाले, वहाबी जो है उनसे भी सबूत देना पड़ेगा। सहाबी भी वहाबी थे, हनफी नहीं थे। फरमाया मैं वहाबी हूँ, वहाबी थे, फरमाया मैं वहाबी हूँ, फिर आपको सबूत देना होगा। अलैहिस्सलाम खुद वहाबी थे। आपको वहाबी क्या कर अल्लाह वाला। 1200 अगर ये बात है, अगर ये बात है, अबू बकर ने कहा मैं हनफी हूँ, उमर ने कहा मैं बरेलवी हूँ, उमर ने कहा बरेलवी हूँ। एक हवाला दिखा दे, एक हवाला दिखा दे। बात असल मौजू की तरफ मैंने आपको वहाबी कहा है, आपने माना कि मैं वहाबी हूँ, फिर इसमें झगड़े वाली क्या बात? मैंने साबित किया कुरान से इन्नका अंतल वहाब। मैंने वहाबी कहा है, आप भी उछलते हैं, वो भी उछलते हैं, सारे उछलते हैं। मैं तो कुरान पढ़ता
तो इन्नका अंतल वहाब, वहाबी का है ना, वहाबी अल्लाह वाला। ओहो मैंने वहाबी का है ना, फिर आपको इतनी तकलीफ क्यों है वहाबी कहने पर? कब तकलीफ नहीं, हमें खुशी है, हमें खुशी है, हमें खुशी है, हम वहाबी हैं, साहब वहाबी थे, साहब है ना, साहब हनफी नहीं, हमें आप कैसे क्यों है वहां? मैं खुश होता हूँ। हालांकि अभी हमने भी आपको वहाबी नहीं कहा। नहीं, अगर आप खुद ब खुद अगर आप निस्बत करें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तरफ तो हम वहाबी नहीं, अगर आप निस्बत करें अल्लाह की तरफ वहाब की तरफ तो हम वहाबी हैं। इसके लिए आपको सबूत देना पड़ेगा, आपको सबूत देना पड़ेगा। ये बात होगी तो देंगे, आपको सबूत देना पड़ेगा। वो तो मुकल्लिद है, जब ये बात होगी तो मुकल्लिद देना पड़ेगा। वो मुकल्लिद था, आप मेहरबानी करके मुकल्लिद के मुतल्लिक जो आपका मसला है वो लिख कर दें। गलत बात है, आप किसके मुकल्लिद थे? इमाम आजम अलैहिर्रहमत मुतलक है, मुज्तहिद नहीं करता, मुज्तहिद से पहले इज्तिहाद से पहले वो किसकी तकलीफ करते थे? मुज्तहिद कोई पैदा नहीं होता, खुद छोड़िए बात मुकल्लिद नहीं मौजूद के बात सुना ना जी, आप में से किसी ने लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब वाले अल्लाह की आप कहते हैं वो भी मोहम्मद है, वो अब्दुल वहाब आप कहते हैं वो भी उसके नाम पे भी देखें कि वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है, मोहम्मद के नाम पे सुना हम कब बांटते कह रहे इन्ना का अब्दुल वहाब उठाओ यार कोई मुनाज़रा शुरू करते हैं। आज ये बात यहाँ मुनाज़रा साहिबान के आवाज में ज़िमनी तौर पर ये बात आ रही है कि शेख वो मुकल्लिद था, वो मुकल्लिद था, ये आपने तस्लीम किया है, वो मुकल्लिद था और आप पर ये हालत अबू हनीफा रहमहुल्लाह दर्जा इज्तिहाद से पहले किसके मुकल्लिद थे? इमाम आज़म अलैहिर्रहमत अबू हनीफा रहमतुल्लाह दर्जा इज्तिहाद पर आप अपने उस्ताद इमाम हम्माद इमाम इब्राहिम नखी मसाइल मुज्तहिद फिया के अंदर ही तकलीद हुआ करती है, उनमें आप इमाम हम्माद इमाम इब्राहिम आप बड़े किताब आप एक के मुकल्लिद हैं, वो दो के मुकल्लिद थे। आप एक के मुकल्लिद जब तक कोई मुज्तहिद मुतलक नहीं होता है क्या बात वो हमें पता है कि आप ये कहते हैं आप मुश्किल से क्यों बात नाम क्या उनका, नाम क्या उनका नहीं पीछे रखे हुए हैं मैंने आपने मेरे अपने साथियों के चलो आप शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब वो मुकल्लिद था और
پاکستان میں آج کوئی فتوا دے رہے ہیں جو مسلط پر دیا جاتا ہے. آپ کی زبان ہے جو مرضی کہتے جائیں. آپ کی زبان تھی, آپ کی زبان تھی. ہم نے آپ کی زبان کے جواب دیے. حالانکہ لفظ وہابی تو ادھر سے شروع ہی نہیں ہوا تھا. موضوع کی طرف میرے بھائی آپ یہ جو ویڈیو والے آپ کی بناتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں ادھر نہیں آتے. بھائی آپ کی بنا رہا ہے, آپ لے کے آئے ہیں. ویڈیو بنا رہا ہے. کے لیے یا ویڈیو کے لیے طرف سے منصفین کا اعلان ہو چکا ہے, اور اس میں قاضی صاحب کی تجویز پر ایک جملہ جو ہے یہ ایڈ کیا گیا ہے کہ منصفین فیصلہ 8 گھنٹے میں کرنے کے پابند ہوں گے انشاءاللہ العزیز. بہرحال یہ تعریف جو ہے ہم نے لکھ دی ہے, اور آپ بھی ایک کاپی اس کی جو ہے ہمیں دے دیں. میں نے جو جملہ زائد کیا ہے, منصفین کے فیصلہ کے لیے آدھا گھنٹہ وقت ہوگا. کسی حتمی نتیجہ پر نہ پہنچنے کی وجہ سے فیصل ویڈیو ہوگا. مولانا اگر کوئی اتنی دیر نہ کر دے جی چپلشی ہے سب سے وہابی نہ شروع صاحب موضوع کی طرف آئے. میں چھوٹے کاسٹ کر رہا سارے بندے اضل مفتی صاحب کی بات سنیں. جی مفتی صاحب, اس میں یہ جو آپ نے آگے الفاظ ایڈ کیے ہیں جی جی کہ ویڈیو فیصل ہوگا, یہ ہم بھی ایڈ کر دیتے ہیں. ویڈیو فیصل نہیں بن سکتا. خلاف فطرت ہو نہیں, اس کی شہادت یا اس کا جو ہے نا اس ایویڈنس کو لیا جائے گا. بات سنیں, فیصل ہوتا ہے جو کوئی فزیکل باڈی ہو, جس میں عقل ہو, جس میں شعور ہو, جس میں کوئی مطلب فیصلہ آج تک پوری امت گزری ہے, کم از کم کوئی لوگوں نے سننا بھی ہے اس کو. ٹھیک, جو آپ لکھ لکھا رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں, پہلے سوچیں پھر بولیں. فیصل سے مراد ویڈیو جو مناظرہ ہے اس کو واضح کریں. آپ یہ لکھیں کہ فیصلے کے لیے ویڈیو کی شہادت یا جو اس کی جو آبزرویشن ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے گا. اس کو فیصل جج نہ بنائے, ویڈیو جج نہیں ہے. کسی حتمی نتیجہ پر نہ پہنچنے کی وجہ سے ویڈیو کی طرف رجوع ہوگا. ٹھیک ہے, ویڈیو کی طرف رجوع ہوگا. یہ بات یہ لکھ دوں. چلو فیصل نہ لکھیں, یہ غلط ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ باڈی ہونی چاہیے جس کو کوئی شعور و مکلف ہو شریک طور پر. ٹھیک ہے, ان سے تعریف لے لیں آپ بھی ان کو. دور میں ہم ویڈیو پہ فیصل ججوں قاضیوں کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں شرائط کے مطابق ہمارے مناظرین کے نام تو لکھے ہوئے ہیں. باقی پینل کا اعلان کر دیا جائے تاکہ زیادہ شور نہ ہو. صدر بات کریں گے, صدر کی بات کا ہماری طرف سے مناظر کی بات کا جواب مناظر دے گا. 2 معاون ہوں گے, تو ان کے علاوہ کوئی دوست مجلس سے بولنے کا مجاز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس سے شور زیادہ ہوتا ہے, مسئلے کی سمجھ نہیں آتی. مولانا تو اتنے تپ گئے ہیں سیالوی صاحب, ان کو ہمارے عقیدے کا ابھی تک نہیں پتا چلا کہ ہم محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں آپ تشریح میں جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کچھ بھی بات کو دل لگا رہے ہیں, وہ لگا رہے ہیں, وہ لگا رہے آپ عالم دین ہیں, لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے کہ یہ دوسرے کی بات کو سننے کا حوصلہ نہیں کرتے. بات پہ کیوں بولتے ہیں؟ گفتگو میں کیا آداب ہے؟ آپ بول رہے ہیں, نہیں بول رہا ہوں, بات ختم ہو گئی تھی. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے ہمارے عقیدے کا لوگ کیا کہیں گے مولانا, لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے, لوگ یہ کہیں گے کہ جس موضوع پہ مناظرے اس پہ کلام ہی نہیں کریں. لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے, جبکہ ہماری طرف سے آپ ویڈیو گفتگو کے آداب کسی نے مانگی تھی. کانتر وہاب ضائع آپ نے کیا ہے, 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 ضائع آپ نے کیا ہے. آپ کسی آدمی آپ نے کیا, اور ان اکابرین کے ہوتے ہوئے آپ کو حاجی صاحب کا میدان مناظرہ میں لاتے ہیں. کم از کم آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے.
तालपुर माजरा के साथ आप पढ़े फिर जो मुनाज़र हैं वो बात नहीं कर रहे। नहीं, गुवाहाटी से भागना चाहते हैं, गुवाहाटी से भागना चाहते हैं, गुवाहाटी से भागना चाहते हैं, हमारा काम खराब है। गुवाहाटी से भागना चाहते हैं। भागना नहीं चाहते आप हमारे आपने ये गलत बात की है कि आधा घंटा इसने जाहिर कर दिया है। हमारे किसी आलम में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बारे में ये नहीं लिखा कि वो हमारे गैर मुकल्लद नहीं। ये आप कह रहे हैं ना, जब एक बार हमारी तहरीरात का एरिया खत्म होगी फिर आप आपकी तहरीरात में भी हमारी तहरीरात हमने ये कहा था कि आवाम में मुकल्लद पर जो फतवा आप देते तकरीबन वो उन पर भी दे आप इस तरह के मुसल्लिक नहीं से, आप हदीस को छोड़ते हैं, वो कौम को छोड़ के हदीस को मानते हैं। हाँ, यही बात फिर हमें इसकी वजाहत हमारी तरफ से मुकल्लद नहीं है। इसका कितना इनकार किया जाएंगे आपकी जान से? पता चलेगा कि कौन जीता है, खालीवाल में इसी मुद्दे पर मुनाज़िर और आप करते हैं। आप करते हैं मेरी बात आप बर्दाश्त नहीं करते। ऐलान होने दे, ऐसा बात ऐलान करते हैं, की तरफ बात आप मुस्लिम है जी? मुल्ज़िम साहब करीब तो लिहाजा बात को जो है ना सही रास्ते पर चलाने के लिए मुनाजरा करवाने के लिए तो दोनों आदमी जो मुनाजिर हैं सिर्फ वही तकल्लुम करेंगे जिस तरह बात पहले हो रही थी, और उसके साथ जो दो क्यों बार बार वो दुखा देते हो? आप वो बात करो, फिर हमने शुरू कर दिया। आपको चलता है किबला कि आप उसको मानते हुए उसको लिखे ना क्या वो अब्दुल वहाब क्या है? छोड़ दो, आपकी तरफ जा रहे हैं। कौन नहीं मानता अब्दुल वहाब को? इतनी सारी दुनिया वहाबी है सब। आप जिस वजह से अल्लाह की वजह से आप वहाबी हैं? नहीं, अली पूछिए वहाबी हैं? इस्तिलाही वहाबी नहीं है, गैर मुकल्लद जिनके वो नजरियों वाले मशरक की तरफ इशारा किया था। आप मुनाज़रा करें, नजदीक कौन है मेरे साथ? आप असल मौजूद पे तहरीर दे दो, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आपके इस मुनाजरे के मौके पर सिर्फ दो अफराद मुतकल्लिम हैं, वही कलाम करेंगे, ठीक है? तो जो मुतकल्लिमीन हैं या मुतकल्लिमान जो उनको लफ्ज कहेंगे तो वही आपस में जो है ना कलाम करेंगे। आप साथ उसके जो है ना उनको तामन दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कानून बना दिया जाए, इसी पर अमल होगा, दोनों तरफ से अमल हो जाए। मैं काजी साहब की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, इससे पहले अल्लामा तालिब तो 12 बजने वाले हैं। तो आपकी तरफ से जो मैं काजी साहब की कर रहा हूँ बात कहना पड़ रही है जी, काजी साहब से अर्ज कर रहा हूँ कि इससे पहले अल्लामा तालिब रहमान साहब से 4 घंटे उनसे गुफ्तगू होती रही और आपने भी मुलाजा फरमाया होगा कि कितने अच्छे माहौल में अल्लामा अब्दुल रहमान शाहीन साहब से 5.25 घंटे मुल्तान में बात होती रही, लेकिन हमारी आपस में किसी किस्म की हमारे बुजुर्ग भी इरशाद फरमा रहे हैं कि सियालवी साहब के बारे में ये दोस्त भी फरमा रहे हैं, ये यकीनी बात है, मेरे अपने दोस्त भी यही फरमाते हैं, लेकिन गुवाहाटी साहब को आप पाबंद कर दें, हमारी तरफ से आपको कोई शिकवा नहीं होगा जो असल में जिनको पाबंद ये नाजिमनी बात है। उससे फिर कोई साहब ने ये फरमाया है, मेरी बात सुने, सियालवी साहब आ रही है, फिर सियालवी साहब ने नहीं, आपने बात की, मेरी बात सुनो, आपने गुवाहाटी का नाम दिया है, सियालवी साहब ने गुवाहाटी से नाम दिया है। मैं उसको जवाब देता हूँ यार। काजी साहब को ऐलान करने दे, काजी साहब आप ऐलान कर सदर का, मुनाजिर का, मुआविन का, आप ऐलान इस ऐलान से पहले देखिए सियालवी साहब ने ये कहा, काजी साहब से
सुनूंगा बात। आपने पार्टी का नाम लिया है, मैं बात सुनूंगा। सदर के नाम लिए आपको अपने सदर पर एतबार नहीं है? सदर के पर एतबार है, लेकिन अगर वो मेरा आपको नाम ले, अपने सदर पर एतबार है तो उन्हें बोलने देना मामला उनसे। मेरी बात सुनो। मामला बात डाल लेना। अगर आपको अपने सदर पर एतबार नहीं है तो किसी और को बता देना। ये एक छोटी सी गुजारिश ये है कि हमारा मुंतजिम हमारे साथियों को कंट्रोल करे, इनका मुंतजिम इनके साथियों को कंट्रोल। बड़ी मेहरबानी। मुनाजरे का असूल ये है कि मुतकल्लिम जो है ना, यानी मुनाजर, वो गुफ्तगू करते हैं। अगर कोई मुनाजर फटकी से उतरता है या यूं समझ लो कि कोई नाजेबा कलमा कहता है मजलिस के खिलाफ, और इसके साथ शरायत में लिखा भी गया है कि नाजेबा कलमा नहीं कहना चाहिए, वैसे भी अहले इल्म की शान नहीं है, तो उस वक्त सदर मुनाजर अपने मुनाजर को मुख्तार करते हैं। तो अगर मुनाजर के बाद सदर मुनाजर की आपस में कशमकश शुरू हो जाती है तो उन पर इंतजाम वाले जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। जी मुंतजिम 2 टाइम की रख दिए गए, खड़े हो गया ना? ये अच्छा, मुंतजिम साहब, हमारी तरफ से पैनल का ऐलान होता है कि जैसे शराइत में लिखा गया है कि मुनाजरा अहले हदीस की तरफ से मौलाना मोहम्मद सादिक साहब कोहाटी वो मुतकल्लिम होंगे, मुनाजिर होंगे हमारी तरफ से। इंशाअल्लाह मैं खुद सदारत करूंगा काजी अब्दुल, और हमारी तरफ से सदारत भी और मुंसिफ भी दोनों। आप मुंसिफ हैं, मुंसिफ नहीं ना हो सकता। हाँ, नहीं, ये कोई कानून नहीं। एक मिनट, मुंसिफ सदर नहीं होगा। मैं बैठ अपनी सुनाते हो, दूसरों की क्यों नहीं सुनते हो? जनाब सुनिए, अभी उन्होंने बिठाया, बैठ गए ना, आप चुप कर जाए। आप क्यों नहीं खामोश होते? खामोश हो गए, आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? हमारे मुनाजिर की सुनते नहीं, आप बोली जा रहे हैं। आप आपको गुवाहाटी ना बोले, आप क्यों बोल रहे हैं? गुवाहाटी ना बोले, आप सारे बोली जाए। जवाब बैठ गए हो, हमें जवाब देने के लिए हमारा एक बंदा बोलता है, सारे बोलते हैं। बोलने दे, गुजारिश ये है कि जब आप मुंसिफ हैं, सदर मुनाजर आप नहीं हैं, सदर मुनाजर और हो। आपकी बात हो गई, साहब की बात सुनो। गुजारिश ये है कि मौलाना अनवार हनफी साहब वो इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा था गुजरा वाले कि आप 29 को जा रहे हैं साहिबा। मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं सदर होऊंगा। ये बात उस वक्त हुई थी, और अब उन्होंने मुझको बावजूद इसके कि वो जानते हैं कि सदर ये होंगे, लिख दिया है उन्होंने मुंसिफ और मुझसे भी। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर बात सुन लो, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है कि जो सदारत करने वाला है वो मुंसिफ नहीं हो सकता, या जो मुंसिफ है वो सदारत नहीं कर सकता? ये कहाँ लिखा है? तुम्हारे हमारे रसूल अपने इजाजत देते हैं कि आप उधर से और अपने मसलक की ठीक नहीं का हमें कोई मुताबिक कर सकते हैं। जो इंसाफ का है इसको छोड़ दे। अब मैं ये पैनल का ऐलान कर रहा था कि हमारी तरफ से मुनाजर होंगे मौलाना मोहम्मद सादिक खान साहब कोहाटी, मैं सदारत करूंगा काजी अब्दुल, और हमारी तरफ से मुआवन होंगे मुनाजिर के मौलाना मोहम्मद उमर सिद्दीक साहब आप गुजरावाला और मौलाना मोहम्मद नसीर साहब आप लाहौर। ये 2 मुआवन होंगे। आप अपने पैनल का ऐलान करें। हमारे पैनल के ऐलान मुनादिर इस्लाम मौलाना शौकत सियालवी साहब वो फरमाएंगे कि सदर कौन है और मुनादिर कौन है, मुआविन कौन है। ये जनाब लिख रहे हैं इस पर कि मैं लिखूं? जैसा कि पहले भी तारीफ फरमाया गया है शरायतनामा के अंदर कि अहले सुन्नत व जमात मसला के हनफी बरेलवी की जानिब से मुनाजिर आज की इस गुफ्तगू में हजरत अल्लामा मुनाजिर इस्लाम किबला अल्लामा गुलाम मुस्तफा नूरी साहब ये मुनाजिर हैं, और आज के इस मुनाजरे की सदारत ये खादिम इस्लाम मोहम्मद शौकत अली सियालवी, और हमारे एक मुआविन हजरत अल्लामा मोहम्मद अनवार हनफी साहब हैं, प्रोफेसर मोहम्मद अनवार हनफी साहब, और दूसरे मुआविन हमारे हजरत अल्लामा मोहम्मद अब्दुर्रहमान कादरी साहब। हमारा पैनल मुनाजरा 5 घंटे अगर होगा तो 5 बजे मगरब होने वाली होती है, 5:30 तो फिर ये फैसला हो जाना चाहिए कि 5 घंटे ही गुफ्तगू होगी, इसमें नमाजों का वक्त आएगा, उसका क्या करना है? वो तो पहले
طے ہو گیا کبھی 3 گھنٹے مناظرہ ہو جائے اور تنقید ہو جائے؟ یہ تو پہلے تاریخ ہو چکی ہے کہ 3 گھنٹے مناظرہ ہو نہیں آپ کے کہنے پر ہی کیا ہے، آپ کے کہنے پر ہی ہوا ہے جی. ہاں جی میرے دونوں کا کہنا مطلب یہ ہے کہ تنقید میں بھی صرف ہمارے کہنے پر نہیں، دونوں کا کہنے پر. ٹھیک ہے تو پھر آخر نمازیں تو آئیں گی نا. نمازوں کا وقفہ کریں گے. زور کی نماز ہے، ایسے کی نماز میرے ہے. خیال میں جو بھی ہو 5 بجے مناظرہ ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 5 بجے دیکھو نا جی، نمازوں کا ٹائم انشاءاللہ دیا جائے گا 15-20 منٹ دیں گے نمازوں کا. وضو کرنا ہے، استنجا کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، 15-20 منٹ ٹائم دیں گے. لیکن یہ ٹائم صرف نماز کا نکالیں گے، اس کے علاوہ 2 نمازیں زور اور اثر. ان نمازوں میں 15 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ وہ کر لیں گے. اس کے بعد مناظرہ کوشش کریں گے 5 بجے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی شرائط وہی اپنی جگہ پر. میرے خیال میں اب ہاں آپ اپنی شرائط پڑھ کر سنا دیں. نہیں پہلی مدعی آپ ہے، پہلے آپ کی تقریر ہے، سنائیں آپ سنائیں. اچھا اس لسٹ کا تبادلہ ہو جانا چاہیے. کس کا؟ جو اسماء کا ہے یہ صدر مناظر اور